Good morning, student. In our previous class, we completed up to the fifth question of the last exercise, and today we will start from the question number 6. In this question, they ask you to write the following cube in expanded form. We have to write the expanded form of the following cube. 2x plus 1 का whole cube. By using the suitable identity, we can write the cube in expanded form. So we see the first one. 2x plus 1 का whole cube, that is equal to 2x cube plus 1 का whole cube plus 3 into 2x का square into 1 plus 3 into 2x plus 1 का square. How we can write this? By using the identity a plus b का whole cube. By using the identity a plus b का whole cube, where a is 2x and b is 1. So it's equal to a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square, where a is equal to 2x and b is equal to 1. So we get cube of 2 is 8 and cube of x is x cube. Cube of 1 is 1. 3 into 4 12 x square और 1 में इंटू करेंगे so we get the same. 3 to the 6x. So this is the expanded form of the given cube. This is the expanded form of the given cube. In case of addition, we can write in any order. हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं. इस 1 को हम लास्ट में भी लिख सकते हैं 8x cube plus 12x square plus 6x plus 1 on the basis of the degree. Now see the next one. 2a cube minus 3b का whole cube. इसको अपन वैसे भी लिख सकते हैं जैसे अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे फर्स्ट सेकंड. यूज आइडेंटिटी which identity we will use a minus b का whole square और x minus y भी बोल सकते हैं x minus y का whole cube. which identity we use here a minus b का whole cube या फिर x minus y का whole cube, that is equal to x cube minus y cube minus 3x square y plus 3xy square. अपन माइनस वाली आइडेंटिटी की प्लस वाली आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं जहां पे अपन b को किसके इक्वल रखेंगे माइनस जो वैल्यू है उसको नेगेटिव लेके चलेंगे. यहां पे अपन देखें हियर x is 2a and y is 3b. If we use negative identity, then no need of taking the negative sign with the value of y. If we take the positive identity, then we take the sign of negative also. So therefore, इस आइडेंटिटी का यूज करके अपन रिप्लेस करेंगे x और y को 2a और 3b से. x cube that means 2a का cube, y cube that means 3b का cube minus 3x square that means 2a का square into y into 3b plus 3 into 2a into y का square that means 3y का square. So we get 2a cube. 2 का cube a. Cube of a is a cube. 3 का cube 27. b cube. 2 का square 4. 4 3 जा 12. 12 3 जा 36. So we get 36 a square b. a का square and b. 3 का square 9. 9 2 जा 18. 18 3 जा 54. Otherwise 3 2 जा 6 और 3 का square 9. 6 जा 9 जा 54. a b square.
So that is the expanded form of the given cube. By using the identity, we can easily find out the cube of any polynomial. Use identity in this question. We can also use same identity. A plus b का whole cube equal a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. This is our identity. In this identity, we can replace a by 3 upon 2x and b by 1. v को रिप्लेस करेंगे 1 से, a को रिप्लेस करेंगे 3 upon 2 into x से. So we get, what we get, 3 upon 2 into x plus 1 का whole cube equal to 3 upon 2 cube of 1 plus 3 into 3 upon 2 x का square into 1 plus 3 into 3 upon 2 x into square of 1. Square of 1. Now we get cube of 3 is 27, cube of 2 is 8 and x cube. 27 upon 8 x cube plus 1. यहाँ पे अपन देखें 3 का स्क्वायर 9 into 3 करेंगे, so we get 27 और 2 का मल्टी स्क्वायर होना है, 2 2 जा 4. साथ में क्या है अपना x, तो x स्क्वायर और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, so we get the same 27 upon 4 x square. Now after this 3 into 3x, so we get 3 3 is 9x upon 2 और 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का मल्टीप्लाई होगा तब भी यही आएगा. So that is our required expanded form of the given question. So by using identity, we can easily find out the expanded form. Now see the fourth one, x minus 2 upon 3 का 2 upon 3 into y का whole cube. यहाँ पर भी अपन नेगेटिव वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो साइन भी लेना पड़ेगा. यूज आइडेंटिटी a minus b का whole cube equal to a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square. a और b अपन इस डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग लेंगे. क्वेश्चन में dx y है तो अपन ab से रिप्रेजेंट कर देंगे. क्वेश्चन में dab है तो अपन xy से रिप्रेजेंट करेंगे. यहाँ पे अपन कंपेयर करें तो a is equal to x and v is equal to नेगेटिव आइडेंटिटी ली है तो अपन साइन नहीं लेंगे, डायरेक्ट लेंगे 2 upon 3 into y. Now we replace a or b of the identity by x and 2 upon 3y, so we get therefore x minus 2 upon 3 y का whole cube equal to a cube, that means x का cube, v cube negative v cube तो 2 upon 3 into y का whole cube minus 3a square that means x का square into v that is 2 upon 3 into y plus 3 into x into 2 upon 3 y का whole square. So now we get cube of x is x cube, cube of 2 is 8, cube of 3 is 27, y cube minus 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, j3 क्या हो जाएगा कैंसिल, so we get 2 x square y. यहाँ पे आएगा अपना 3 से 3 कैंसिल होगा, स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर होगा 4, एक 3 कैंसिल हुआ तो अपना बचा 3x into y square. y का स्क्वायर है तो x into y square. So this way we can find out the expanded form of the given question by using the suitable identity. Now see the question number 7. Evaluate the following using suitable identity.
minus 1 का cube, or we can write 90 plus 9 का cube. After this we can use the identity. Use identity a minus b का whole cube, that is equal to a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square plus 3ab square. Now we can write, यहाँ पे अपन कंपेयर भी करते पहले, तो here a is equal to 100 and b is equal to 1. नेगेटिव आइडेंटिटी लिए तो अपन नेगेटिव 1 ही लेंगे, पॉजिटिव आइडेंटिटी लिए होती तो अपन नेगेटिव 1 लेंगे इसको. अब अपन इसको रिप्लेस करें a और b को 100 और 1 से, so we get 100 minus 1 का whole cube equal a का cube that means cube of 100, b का cube that means cube of 1 minus 3 into a square that means square of 100 into b that means into 1 plus 3 into a into v का square cube of 100. स्क्वायर में 0 को डबल करते हैं, क्यूब में अपन 0 को ट्रिपल करते हैं, 2 है तो 3 टाइम्स करेंगे तो कितने आएंगे 6. क्यूब ऑफ 1 इज 1. 100 का क्यूब कितना, स्क्वायर कितना होगा 1000 और 10000. 2 0 के कितने होंगे 4, दैट इज 10000 प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 3 into 100 करोगे सो वी गेट 300. यहाँ पे चाहे तो अपन इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 30,000 प्लस 300. अब यहाँ पे जो नेगेटिव होगा माइनस होंगे उनको माइनस कर देंगे, प्लस 1 को अपन प्लस करते हैं तो हम ऐड करें तो कितना आएगा 10 लाख 300 और नेगेटिव 5 को ऐड करेंगे सो वी गेट 30,001. Then we do the subtraction, so 10 minus 1 9, यहाँ पर आएगा आपका 9, 3 का बचा आपका 2, यहाँ 0 का आ जाएगा आपका 0, यहाँ पे होगा 10 तो 10 में से 3 गया तो 7 और इस 10 का आपका कितना बचा 9, कितना बचा यहाँ से 9. So you get 9,70,299. Now see the next one. यहाँ पर भी इसको हम कैसे लिखेंगे 100 plus 2 का whole cube. So using the identity, use identity a plus b का whole cube that is equal to a cube plus b cube plus 3a square b प्लस 3ab स्क्वायर. यहाँ पे यदि अपन कंपेयर करें तो a क्या है आपका 100, a is 100 and b is 2. Now we replace a or b of the identity by 100 and 2 respectively, so we get 100 plus 2 का whole cube that is equal to a cube that means cube of 100, b cube that means cube of 2 plus 3 into a square that is square of 100 into b that means into 2 plus 3 into a into b square that is square of 2. b is 2 so square of 2. Now यहाँ पे 100 का क्यूब 0 को ट्रिपल टाइम करेंगे 2 4 6 0 हो गए, यहाँ पे 10 है. क्यूब ऑफ 2 8. यहाँ 100 का स्क्वायर 100 के 0 को यहाँ पे मैं डबल करें या तो मैं डायरेक्ट ले सकते 60,000 3 2 6 और 6 into 10,000 60,000. अदरवाइज वी कैन राइट इन दिस वे. सेम थिंग वी कैन डू हियर 3 into 100 300 into 4. Now we do 10 lakh plus 8 plus 60,000 plus 3 2 4 4 3 12
into 100 1200। तो यहाँ से अपना फाइनली आ गया तो 8 then 0 then 2 then 1। जो 1208 को प्लस किया तो 1208, फिर 60,000 में 1208 को प्लस करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा 61,000। कितना आ जाएगा 60,000 में 1,208 को प्लस किया तो 61,000। अब 10 लाख में इसको प्लस कर दें तो आ जाएगा 10,61,208। 1,208 को प्लस किया so we get 10,61,208। now see the last one, इसको पर लिखेंगे 1000 minus 2। 998 था so we write 1000 minus 2। after this we use the same identity, use a minus b का whole cube equal a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square। यहाँ नेगेटिव था, नेगेटिव आइडेंटिटी यहाँ कंपेयर किया so a is equal to 1000 and b is equal to 2 and v is 2। now replace a and b of the identity by 1000 and 2 so we get 1000 minus 2 का whole cube equal to a का cube that means cube of 1000 cube of 1000 v का cube that means cube of 2 minus 3 into a square that means square of 1000 into b that means 2 plus 3 into 1000 plus 2 का square। now cube of 1000 3 0 है ट्रिपल टाइम कर देंगे तो कितने जीरो आएंगे 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 का क्यूब 8 होगा। 1000 में भी यहाँ पे देखो तो 3 2 जा 6 into 3 0 के कितने होंगे यहाँ पे 6 तो 1000 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ 10 में प्लस 3 into 1000 3000 into 2 2 जा 4 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। तो यहाँ से अपन देखें जे आया अपना माइनस 8 माइनस जे अपना 6 into 10 है तो आ जाएगा 60 है कितना आ गया 60 है प्लस 4 3 का 12 कितना आ गया अपना 3000 का 4 में मल्टीप्लाई किया तो आ गया अपना 12000। नाउ आफ्टर दिस नेगेटिव वाले को अलग अलग करो और पॉजिटिव वाले को अलग अलग करते हैं 1 2 3 4 5 4 0 आएंगे यहाँ तो उसको अपन प्लस करें तो 1 2 यहाँ पे अपन 60 लाइन में प्लस करें 1 को so we get 60 लाइन। now after this do the subtraction, इसके बाद आप सबट्रैक्ट करें यहाँ से तो 10 में से 8 गया 2 यहाँ पे आपका 9 आएगा तो 9 में से 0 सबट्रैक्ट करेंगे तो 9 का 9 अगेन 9 में से 0 अगेन we get 9 2 का हो गया था क्या 1 का हमने कैरी दिया था यहाँ 1 में से 0 तो आएगा 1 अगेन 0। तो यहाँ से अपन देख रहे हैं क्या है जी अपना 0 1 2 3 4 5 यहाँ तक अपन ने सॉल्व कर लिया इसको। अब 0 में से अपना 0 गया तो क्या आएगा 0। अब 0 में से यहाँ 6 गया तो 10 होगा 10 में से 6 गया तो 4 यहाँ पे आपको बचा 9 9 कितना बचा 9 9 so finally we get 99 40 11 992 that is our answer। this is our answer। so first we use the identity, after this we change the identity of the identity by the value and finally by addition and subtraction we get the expanded form first, after this addition we get the value of the cube of given number। now let's see the question number 8, factorize each of the following। इसमें अपन को factorize
किया था? आफ्टर दिस वी फाउंड द RHS ऑफ द आइडेंटिटी एंड गेट द LHS साइड ऑफ द आइडेंटिटी बाय कंपैरिजन। सो यहाँ पे हम देखें 880, सो वी कैन राइट 8 is the cube of 2 and 8, so we get 2a का whole cube plus v cube, that means v का। अब अपन आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग देखें इसको अलग करके, तो क्या होता है 3 into j आपका a है, तो a स्क्वायर into v प्लस 3 into a जो कि आपका 2a है into v स्क्वायर जो कि आपका v है वो v स्क्वायर। यदि आप यहां से देखें 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 a स्क्वायर v, यहां से देखें तो 3 2 जा 6 a v स्क्वायर आ गया। अब इसको अपन कंपैरिजन करें अपनी आइडेंटिटी से, तो अपन को क्या मिलेगा 2a प्लस v का होल क्यूब। 2a प्लस v का होल क्यूब कहां से आया जी? अपन आइडेंटिटी देखें तो क्या होगी x स्क्वायर x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर इक्वल टू x प्लस y का होल क्यूब इक्वल टू x प्लस y का होल क्यूब, जहां पे x आपका 2a है और y आपका b है। सो इन दिस वे वी कैन फैक्टराइज इट, और फैक्टराइज में अपन इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं 2a प्लस b, 2a प्लस b और 2a प्लस in this form we can also write this 3 की पावर है, so we can write it into 3 times. Now see the next one, यहाँ पर भी अपन देखें तो 8 है, that means 2 का क्यूब 8, तो 8 का क्यूब क्या होगा 2 माइनस v का क्यूब माइनस क्या होगा 3 into a स्क्वायर into v, v आपका यहाँ v है अगेन प्लस 3 into 2a into v स्क्वायर। तो यहां से आप सॉल्व करोगे 3 into 4 12 a स्क्वायर v, तो आपको अगेन वही मिलेगा। यहां से आपकी आइडेंटिटी बनेगी 2a माइनस v का होल क्यूब, कहां से आया जी आपका अगेन x स्क्वायर x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर इक्वल क्या होगा x माइनस y का होल क्यूब, x माइनस y का होल क्यूब। सो दिस वे वी कैन फाइंड आउट द फैक्टराइज और फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, और इसको भी अपन लिख सकते हैं 2a माइनस b, 2a माइनस b और 2a माइनस b। सो दिस वे वी कैन फैक्टराइज। थर्ड वाला देखें 27 is the cube of 3, so cube root of 27 is 3, 125 is the cube of 5, so cube root of 125 is 5, और ये है तो यहाँ पे आएगा into अपन आइडेंटिटी का प्रोडक्ट देखें a अपना 3 है तो 3 का स्क्वायर into v आपका क्या है 5 है प्लस 3 into a क्या है आपका 3 into v स्क्वायर, v क्या है आपका 5 है। तो यहां से आप सॉल्व करोगे 3 का स्क्वायर 9 9 5 जा 45 45 3 जा 135, 5 का स्क्वायर आपका आएगा 25 25 into 9 करोगे सो यू गेट 225 और a स्क्वायर। यहां से आप कंपेयर की आइडेंटिटी से, सो वी गेट a माइनस v। यदि आपने स्टार्टिंग के दो नंबर बना लिए तो आपकी पूरी आइडेंटिटी इन्हीं दो से बन जाएगी a माइनस b का होल क्यूब। किस आइडेंटिटी से आया a क्यूब माइनस v क्यूब माइनस 3ab 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल टू a माइनस v का होल क्यूब। इसको अपन ab xy दोनों के फॉर्म में लिख सकते हैं, xy के फॉर्म में या फिर ab। नाउ सी द फोर्थ वन 64 64 is the cube of 4, so cube root of 64 is 4। 27 is the cube of 3, so cube root of 27 is 3
तो यहाँ से अपन देखें 4 का स्क्वायर क्या होगा 60, 3 3 जा 9, तो 9 into 16 144, नेगेटिव साइन आ जाएगा a स्क्वायर का a स्क्वायर। यहाँ से आप देखो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 4 जा 36 और 36 3 जा 108। अब यहाँ से आपका a आ गया 4a और b आ गया आपका 3b और आइडेंटिटी क्या बनेगी a माइनस b का होल क्यूब। क्या होगी अपनी आइडेंटिटी a माइनस b का होल क्यूब इक्वल a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। आपको सिर्फ a और b बनाना है, बाकी आप इसी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। 3 into a स्क्वायर जो आपका a था उसको रख देंगे, b को रख देंगे, तो ऑटोमेटिक जो आएगा आपका वो इसी नंबर को आपको मिलेगा 144 a स्क्वायर भी और 108 ab स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। इसको चाहो तो सेपरेट करके भी 3 टाइम्स लिख सकते हैं। सी द लास्ट वन 27 is the cube of 3, so cube root of 27 is 3, so 3b का whole cube, 3b का whole cube, 216 is the cube of 6, so cube root of 216 is 6। अब आपके लिए इसको देखना, अपन की आइडेंटिटी का पड़ेगा अपन देखेंगे तो 3 into a square that means 3b का स्क्वायर, 3 into a square into b that means 1/60। j आपका a है, j आपका क्या है b, j आपका a हो गया और यहां से इसको देखो तो j क्या हो गया आपका b हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग अपन को 3 into a square b, तो यहां से आप देखोगे तो 3 से 6 कैंसिल, क्या बचेगा नीचे 2 और 3 का स्क्वायर 9, क्या आएगा 9p स्क्वायर। जी हां p नहीं है, क्या है 9p स्क्वायर। इसके बाद प्लस यहां से आपका क्या आएगा 3 into 3p into b स्क्वायर दैट मींस 1/6 का स्क्वायर। 1/6 का स्क्वायर यहां से आप देखोगे 6 का स्क्वायर 36, तो 3 3 जा 9, तो 9 36 कैंसिल करोगे क्या बचेगा 1/4 और p का आ जाएगा p a माइनस b का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो इसके लिए आप a और b निकाल के ऑटोमेटिक क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। सो यू गेट दिस वन। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज वेरीफाई। यहां पे अपन को वेरीफाई करना है दैट मींस LHS इक्वल RHS। तो अपन x³ प्लस y³ ना लेके अपन किसको लेके चलते हैं पहले RHS साइड। First we take RHS side, that is x plus y into x square minus xy plus y square। यहाँ पे आपको करना क्या है, पहले x का मल्टीप्लाई करना है सब में, x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर में। आफ्टर दिस मल्टीप्लाई ऑफ y into x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर। पहले x का मल्टीप्लाई करना है फिर y का। नाउ स्टार्ट x into x square we get x cube, x into minus xy so we get minus x square y plus x y square। now plus y into x square, y into minus xy square, y into y तो आ जाएगा y। यहां से आप देखो माइनस एक्स स्क्वायर y प्लस j आ गया। a नेगेटिव में है और ये आपका किस में है पॉजिटिव में। वेरिएबल भी सेम है, डिग्री भी सेम है, जिस सब कैंसिल हो जाएंगे अकेला क्या बचेगा यहां से आप देखें ये वाला और j x y square so you get only x cube plus y। ये सभी क्या हो जाएगा आपके कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव है, जी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे कैंसिल एंड फाइनली यू गेट LHS साइन। फाइनली यू गेट LHS साइन। RHS लेके चले थे, LHS आ गया, फिर होगा आपका वेरीफाई।
Same way we can do the next one also. यहाँ पर भी अपन RHS साइन लेके चले। तो सबसे पहले आपका x माइनस वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज योर RHS साइन। यहाँ पे पहले x का मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई ऑफ x into x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, then multiply of negative y into x square plus xy plus y square. So your product is x into x square x cube plus x square y, x into y square, so you get x y square. Now multiply minus y into the bracket, so you get minus x square y प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ से माइनस वाई का इंटू वाई स्क्वायर होगा, तो यू गेट माइनस वाई एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ पे जे पॉजिटिव, यहाँ पे जे नेगेटिव, यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर पॉजिटिव एक्स वाई स्क्वायर नेगेटिव, सो फाइनली यू गेट एक्स क्यूब माइनस वाई and all the terms are cancelled, so you get LHS sign. Now see the question number 10, factorize each of the following. इनको अपन को क्या करना, फैक्टराइज करना है। जो भी अपन ने क्वेश्चन नंबर 9 में सॉल्व किया था उसी आइडेंटिटी को अपन यूज करके इनको फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ से अपन पहले इसको फॉर्म करें, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 27y³ that means 3y का whole cube plus 125 is the cube of 5, so cube root of 125 is 5 z का whole cube। 27y³ को करना है 3y का और 125 z को 5 z का whole cube। now we use the identity, यहां से अपन यूज करें, यूज आइडेंटिटी जो भी अपन ने प्रूफ की थी उन क्वेश्चन नंबर 9 x क्यूब प्लस y क्यूब, x क्यूब प्लस y क्यूब, या फिर क्वेश्चन में x और y और z है तो आप a और b भी लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। जे जो अभी अपन ने क्वेश्चन नंबर 9 में प्रूफ किया था उसी आइडेंटिटी को अपन यहां पे लिया, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल a प्लस b a स्क्वायर माइनस a क्यूब प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे आपका जो a है दैट इज 3y और जो आपका b है दैट इज 5z। b क्या है यहाँ पे आपका 5z। अपन रिप्लेस करते हैं a और b को आइडेंटिटी के y 3y एंड 5z, सो वी गेट 3y का होल क्यूब प्लस whole cube of 5z that is equal to 3y plus 5z equal to 3y plus 5z into whole square of 3y a square that means whole square of 3y into ab that means 3y into 5z plus v का स्क्वायर that means square of 5। so we get 3y plus 5z, 3y plus 5z, square of 3 is 9, y square 5 3 का 15, yz square of 5 is 25 z square। so this way we can factorize the given question, 3y plus 5z 9y square minus 15yz plus 25z square is the factorization of 27y³ plus 125z³। now second we get the next one, 64m³ को हम क्या लिख सकते हैं, 4m का whole cube, 4m का whole cube, 64 is the cube of 4 and 343 is the cube of 7। now we use the identity जो दूसरी अपन ने प्रूफ की थी क्वेश्चन नंबर 9 में, यूज
यहाँ पे अपन x y की फॉर्म में ले सकते हैं x क्यूब माइनस y क्यूब इक्वल x माइनस y इंटू x स्क्वायर प्लस x वाई प्लस y स्क्वायर। यहाँ पे जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया और यहाँ पे नेगेटिव था जो कि क्या हो गया पॉजिटिव। नाउ यहाँ पे अपन कंपेयर करें तो a is equal to 4m and b is equal to 7m. Now we replace a and b of identity by 4m and 7m respectively. So we get 4m का whole cube minus whole cube of 7m equal to 4m minus 7m whole square of 4m minus 4m into 7m। यहाँ पे जो प्लस आता है इसमें 4m into 7m plus whole square of 7m। So finally we get 4m minus 7m। 4 का